हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बोला, बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक वी शुड नो द topic meaning. Whatever you are going to study, you should know the meaning of the topic. So, the heredity and the evolution. Heredity means what you are getting from your parents, right? So, that is the that run from generation to generation. That is the heredity. Evolution is change with the time. That is the evolution. We have changed with the time. So, we say we have evolved with the time. So, that is an evolution. I hope this definition is clear. So, we have seen that the reproductive process gives rise to new individuals that are similar but subtly different. So, we know that whenever the reproduction takes place, what is reproduction? Giving the birth of the new one, right? New individual. But that individual will not be आइडेंटिकल, राइट? वो आप एकदम एक जैसा नहीं होगा, दे आर डिफरेंट. So we have discussed how some amount of the variation is produced even during asexual reproduction. Now we should know what is a sexual reproduction and asexual reproduction. What is the difference between them? In the sexual reproduction, two individuals are involved, and in asexual only one organism is involved. So most of the time in asexual reproduction the variation is very less, or you will say it's not there. Variation is not there, but in the sexual reproduction variation is there. So it is saying that you can produce some amount of variation during asexual reproduction. Okay, some amount of variation, not very high amount of. So as the number of the successful variation as are maximized by the process of sexual reproduction, if we observe a field of sugarcane, we can find little variation among the individual plant. So as I already told you, there is a variation in a sexual reproduction. In a sexual reproduction, you will see a lot of variation. Let me give an example. Let's take an example of human. We all are different, right? We all are human. We all have two leg, two eye, two hand, but we all are different. Correct? Why? Because we have a variation. कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है. Features are different, even though we all have two leg, two hand, two eye, one nose, but we all are different. Color of the eye is different, color of your skin is different. Why? That is because variation is there, and variation, you will see high amount of variation in a sexual reproduction, right? So different in individual. Now in this chapter we shall be studying the mechanism by which a variation are created and inherited. The long-term consequence of the accumulation of variation are also an interesting point to be considered. So variation is very important. Let me give you the current scenario example. Let's take an example of COVID. Okay, suppose in human, suppose there was no variation in human, and we, if there was no variation, we all be same. हम सब एक जैसे होते, सब कुछ एक जैसा होता. So just imagine कि अगर कोविड वायरस किसी एक पर्सन को इन्फेक्ट करता, एंड तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता, क्योंकि हमारे में कोई वेरिएशन ही नहीं है. ठीक है, तो वो एक जैसा ही सबको इन्फेक्ट करता, और मे बी द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन विल बिकम जीरो ऑन दिस प्लानट अगर वेरिएशन नहीं होता. बिकॉज वी हैव अ वेरिएशन, सबका इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, सबका बॉडी डिफरेंट है, सबका बॉडी डिफरेंटली वर्क करता है. दैट इज वाई the COVID virus is very effective to some or very less effective to another person, right? Because of the variation. Now, the next topic is accumulation of variation during reproduction. So, accumulation of variation means variation इकट्ठे होते हैं during the reproduction. So, you can take this example now. So, creation of diversity over succeeding generation. So the original organism at the top will give rise to say two individual, right? ये एक टॉप पे है, उसने दो इंडिविजुअल को दिया. लेट्स टेक मेल और अ फीमेल,
right? But with subtle different, मेल इज डिफरेंट फ्रॉम अ फीमेल. हम एक ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एक इंडिविजुअल है, उसने को दिया, दो इंडिविजुअल को दिया, दैट इज डिफरेंट, मेल और फीमेल मान लो, राइट, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं. ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल. अब ये हर एक दो दो इंडिविजुअल को पैदा करेंगे. ओके, नाउ in the next one, each of the four individual in the bottom row will be different from each other, right? अगर आप देखो, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट? सो while some of these difference will be unique, other will be inherited from their parent. कुछ जो differences होंगे that is unique. unique आप ये देख सकते हो, जैसे ये पेरेंट है, कलर इट इज डिफरेंट, राइट? अब यहाँ पर दिस इज यूनिक, यहाँ पे पर्पल कलर का गया. सो सम ऑफ द कैरेक्टर वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट, बट सम ऑफ द कैरेक्टर वी हैव, और इट इज अ यूनिक, यू कैन से दैट. और वो क्यों होते हैं? कुछ कैरेक्टर यूनिक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द जीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. So in figure 9.1 would represent the situation of an individual reproduce as happen in asexual reproduction, and if one bacterium divided and then the resultant to two bacteria divide again, so you get four individual bacteria, right? ये बैक्टीरिया का हमने एग्जाम्पल ले लिया. बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. सो यहाँ पर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हुआ और एट द एंड हाउ मच यू गॉट? यू गॉट फोर इंडिविजुअल, राइट? हमको फोर इंडिविजुअल मिल गए. लेट मी इरेज दिस ताकि कुछ अच्छे से दिखाई देता रहे. सो जब आपको फोर इंडिविजुअल मिले, वो दे आर सेम बट सम ऑफ द कैरेक्टर इन इंडिविजुअल इज डिफरेंट. कुछ कैरेक्टर उनमें डिफरेंट है, राइट? सो देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंस, बहुत ही छोटा डिफरेंस होगा बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग. और जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी वेरिएशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए. एंड इफ sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, and we will see when we discuss the rule of inheritance. अगर ये मैंने आपको पहले ही बोला, इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशन इज वेरी हाई इन द एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि अब हमें यहाँ पे जानने की बात है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल. Because in asexual reproduction only one parent DNA take place, only one parent DNA is involved, whereas in asexual reproduction two parent DNA are involved, mother and father. So that is why the variation is more in sexual reproduction. Now, do all these variation in a species have equal chance of surviving in the environment in which they have find themselves? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट. सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग डीएनए है, और सबका अलग अलग डीएनए अलग अलग तरीके से वर्क करता है. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल विल हैव different inheritance from the previous generation, provided both a common basic body design, subtle change in it for the next generation, right? हर एक का बॉडी डिफरेंट है, हर एक के बॉडी का वर्क करने का प्रोसेस डिफरेंट है, और जो हम कैरेक्टर्स वी इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट? सबके पेरेंट डिफरेंट होते हैं, सबके पेरेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, और वो डिफरेंट कैरेक्टर ही दे इनहेरिट टू देयर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, राइट? सो सब एक जैसे नहीं हो सकते. Now different kind of advantage is also there. So the bacteria that can, so the bacteria, yeah, bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier. Now there are some bacteria that can survive under extreme condition, right? So the selection of the variation by environmental factor form the basic
for the evolutionary process. So जो भी environmental characters हैं, they help the individual to survive, right? So it is like a selection of variation जो environment में change होते हैं, that help to select the character in the individual so that they can able to survive. I hope ये part आपको clear हो गया होगा. Now we'll talk about heredity. So heredity is the most obvious outcome of the reproductive process, still remain the generation of individual of similar design. So the rule of heredity determine the process by which the trait and the characters are reliably inherited. Now let us take a closer look of the rule. So the inherit character is basically the character that pass from one generation to the another generation, right? So there is a rule. So what is inherit trait? So the trait is basically the character that you get. That is the trait. अब यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल आया है, द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज द मेंडल contribution. Now see this. This is a lobed ear and this is a lobeless ear. So these are the two characters. आप किसी के जब किसी किसी के ये लोब्ड ईयर होते हैं और किसी किसी के ये लोबलेस ईयर होते हैं. So the rule of inheritance of such trait in human being are related to the fact that both father and mother contribute to the physically equal amount of genetic material in the child. अब ये कह रहा है कि जो भी आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो भी एक बच्चे को कैरेक्टर मिलते हैं, they get that character from their father and mother. दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. कैसे? ये देखो, फादर के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मदर के पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. वेट, लेट मी इरेज दिस. जब भी इरेज करते एकदम टॉप पे चला जाता है. हाँ, सो द फादर, लेट मी गेट द पेन. फादर एंड मदर, फादर हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये क्यों ऐसा हो गया? Mother also have a double stranded DNA, right? So when the reproduction takes place, crossing takes place, father give one strand of its DNA and mother give another strand of DNA. So that is why both father and the mother equally contribute. दोनों एक एक strand of DNA देते हैं to their offspring, जो उनका बच्चा होता है. That is why जब आप जाते होंगे कहीं पर किसी रिश्तेदार के पास, so they must have told you that you look like your father or you look like your mother, or this eye, your eye look like your father, your smile look like your mother. क्यों? Because आपके पास उन दोनों के DNA हैं and because of that आपके पास उन दोनों के characters हैं, right? So the Mendel box worked out the main rule of such inheritance, and it is interested to look at some his experiment from more than a century ago. So अब हम मेंडल का वर्क क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट करा है उसने बहुत ही अच्छे से उसको क्या कहते हैं, उसको कॉपी करके उसको एकदम से उसको अच्छे से स्टोर करके रखा है ताकि फ्यूचर में लोग उसको पढ़ सके, समझ सके और उसके बेसिस पे आगे काम कर सके, राइट? हम आज तक मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, मेंडल ने जो काम करा उसी को हम रिलेट करके पढ़ते हैं. सो नाउ मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी. अब मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे? फर्स्ट उसने एक्सपेरिमेंट करा गार्डन पी का, राइट? वाई? बिकॉज इन गार्डन पी देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स. उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. दैट इज वाई ही टुक गार्डन पी. क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तब आपको किसी चीज़ को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. अगर आपके पास एक या दो ही कैरेक्टर होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना पता नहीं चलता है. सो दैट इज वाई ही सेलेक्टेड द गार्डन पी एंड द कैरेक्टर वॉज राउंड रिंकल सीड, शॉर्ट टॉल प्लांट, वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर एंड सो ऑन. ये सारे कैरेक्टर्स उसने देखे. नाउ ही टुक pea plant with different characteristics. Let's take tall plant and a short plant. Produce progeny from them and calculate the percentage of tall and the short progeny. तो उसने क्या करा? उसने tall plant लिया और उसने short plant लिया, दोनों का क्रॉस करवाया.
ठीक है, फर्स्ट उसने क्रॉस करवाया तो उसने देखा इन द फर्स्ट जनरेशन ऑल द प्लांट्स आर टॉल। वो थोड़ा हैरान रह गया, बिकॉज व्हेन यू क्रॉस द टॉल एंड द शॉर्ट तो हम क्या सोचते हैं कि रिजल्ट विल बी मीडियम, नॉट टू टॉल नॉट टू शॉर्ट, राइट? बट in the F1 progeny, no medium height plant was there, right? All the plants were tall. So this means that only one of the parent trait has been seen, not the mixture of the two, right? और हमने क्या पढ़ा, जो offspring होता है they have a mixture of both the parent. इक्वल अमाउंट में मदर का भी आता है और फादर का भी आता है। तो उसने जब ये करा तो उसको तो सारे टॉल मिले, ही डिडंट गेट द मीडियम हाइट प्लांट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वर where the tall plant in the F1 generation exactly the same as the tall plant of the parent generation। तो जो उसको tall plant मिला F1 जनरेशन में, उसने सोचा कि अच्छा अब मुझे टॉल प्लांट मिल तो गया है, क्या ये एग्जैक्टली सेम है पेरेंट टॉल प्लांट का, सब कुछ सिमिलर है। सो द मेंडलिन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय जनरेटिंग बोथ द पेरेंट प्लांट एंड F1 प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसने अब क्या करा, अब मुझे पढ़ना है कि वेदर दे बोथ हैव द सिमिलर कैरेक्टर। सो उसने क्या करा, लेट्स डू द सेल्फ पॉलिनेशन। सो जो उसको F1 जनरेशन में जो मिला, F1 जनरेशन में जो उसको रिजल्ट मिला, उसने उसको सेल्फ पॉलिनेट करा, उसने उसी को ही क्रॉस करवा दिया। सो यू कैन सी द जीन दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसने इन दोनों को क्रॉस करवाया and the result was astonishing and he was surprised to see that. So the progeny of the parental plant are of course all tall, right? Parent plant दोनों ही tall हैं। So the second generation or the F2 progeny of the F1 tall plant are not all tall। जब उसने F2 generation का result देखा, he was surprised and he saw that not all the plants are tall, instead one quarter of them are short। उनमें से one quarter was short। So this indicates that both the tallness and the shortness trait were inherent in the F1 generation or in the F1 plant। तो उसने जब सेकेंड F2 जनरेशन में जब उसको रिजल्ट मिला तो उसने फाइंड आउट करा कि ओके जो मुझे रिजल्ट मिला है दैट इज बिकॉज दैट रिजल्ट वाज प्रेजेंट, दैट जीन वाज प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, ये वाली जनरेशन में इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, तभी तो मुझे सेकेंड जनरेशन में शॉर्ट प्लांट भी मिला, राइट? बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वर एक्सप्रेस। F1 जनरेशन में ओनली tall trait was expressed, in F2 generation tall and short both the trait were expressed, but जो short का trait था वो थोड़ा less quantity में हुआ। So does the two copy of the trait are inherent in each sexually producing organism, and these two may be identical or may be different depending upon the percentage। A pattern of inheritance can be worked out this assumption। So this is what he find out when he done the cross। So this experiment is very important। So उसने क्या करा, in the F1 generation he crossed the tall and the short plant and the result was all the plant were tall in the F1 generation। So he was surprised to see that। So उसने क्या करा, to find out whether the F1 generation tall plant have the same character of the tall plant of the parent, क्या उसके साथ इसके साथ सिमिलर है। सो ही हैज डन द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 generation। सो व्हेन ही डन द F1 self pollination of the F1 generation, he find out that all the plants are, some of the plants are tall and one quarter was short। So he came to know that okay, that means in the F1 generation the tall and the short gene is present। वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था, वो F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हुआ, बट इट एक्सप्रेस इन द F2 जनरेशन, राइट? वो उसको F2 जनरेशन में दिखा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट both capital T capital T capital T small t are tall plant while small t is a short plant। So in another word you can say that capital T is enough to make the plant tall। जब भी कोई
जीन कैपिटल में एक्सप्रेस होगा, ओके, इट कैन बी कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू, सो दैट मीन्स दैट इज टॉकिंग अबाउट अ डोमिनेंट जीन। और जब भी एक प्रेजेंट होगा कैपिटल या दो प्रेजेंट हो गए, उसका कैरेक्टर ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस, ओके। while both copy have to be small d, अगर कोई स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है, स्मॉल लेटर में दोनों है, तो उसका एक्सप्रेस होगा कैरेक्टर। सो दैट मीन्स सी, हम क्या होते हैं इन द जेनेटिक, इन द जीन और जेनेटिक, वेन एवर यू राइट एनी जीन इन कैपिटल and any gene in small, so the capital is expressed that it is a dominant character, and the small alphabet represent it is a recessive character. So जब भी dominant gene present होगा, this is dominant, capital is dominant, जब भी ये present होगा it will always going to express, चाहे वो एक हो या दो हो, इसका कैरेक्टर हमेशा दिखेगा। और रेसेसिव जीन का कैरेक्टर तभी दिखेगा जब ये पेयर में होंगे, अगर वो सिंगल होंगे तो कभी भी रेसेसिव जीन का कैरेक्टर नहीं दिखेगा, राइट। सो द कैपिटल टी आर कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट एंड द स्मॉल टी आर कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट एंड कैपिटल टी आर कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, राइट। ये हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, डोमिनेंट को स्मॉल कैपिटल लेटर में और रेसेसिव को स्मॉल लेटर में, राइट। Okay, so this is about the dominant gene and the recessive gene. Now, what happened when pea plant when the pea plants showing two different characteristics rather than just one are breed with each other? तो अब वो कह रहा है कि अब क्या होगा कि जो pea plant है वो शो कर रहा है टू डिफरेंट कैरेक्टर, नॉट वन। अभी हमने क्या लिया था, ओनली द हाइट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे टू डिफरेंट कैरेक्टर दे आर टेकिंग एंड दे आर सीइंग कि व्हाट विल हैपन। सो what do the progeny of all tall plant with rounded seed and the short plant with wrinkled seed look like? तो उसने कैरेक्टर ले लिए। Now they are all tall, have rounded seed. Tallness and the rounded seeds are thus dominant trait because वो trait express हुआ, so that is the dominant trait. So, but what happened when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? अब क्या होगा, जो भी आपको F1 प्रोजेनी में ट्रेड मिले हैं, आपने उसको सेल्फ पॉलिनेट करा एंड what you get in the F2 progeny after doing the self pollination. So a Mendelian experiment will find out some F2 progeny are tall plant and rounded seed. जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन करा तो उसको मिला in the F2 generation the progeny are tall and rounded, right, and some are short and wrinkled, okay, तो उसको ये मिला। Now there would also be some F2 progeny that showed new mixture and some of them would be tall but have wrinkled seed while other have short and have round seed. अब जब उसने दो कैरेक्टर्स को लिया, सो द रिजल्ट वाज वेरी डिफरेंट, तो उसको मिक्सचर मिला हर एक चीज का, राइट। सो अभी पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, व्हाट हैपन हियर इज दैट दे आर पेरेंट प्लांट, ठीक है, ये पर्पल फ्लावर एंड द वाइट फ्लावर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा, राइट। सो इन F1 प्रोजेनी, इन F1 जनरेशन ऑल पर्पल फ्लावर, ओके, F1 में आपको सारे पर्पल फ्लावर दिखेंगे। तो अगेन उसने F1 जनरेशन में जो भी फ्लावर मिले उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, मीन्स पर्पल को पर्पल से क्रॉस करवाया। तो इन द F2 जनरेशन ही गॉट 3 पर्पल एंड वाइट, 1 वाइट फ्लावर, so that is the 3:1. This is this experiment, okay. अब यहाँ पे आता है 2 कैरेक्टर, सो ये आपका आ गया राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। राउंड जो आपका है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड ग्रीन जो है आपका रेसेसिव कैरेक्टर है, रिंकल्ड यहाँ रेसेसिव कैरेक्टर है एंड येलो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमने कैसे पता लगाया, बाय सीइंग द
कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल लेटर, राइट। तो यहाँ स्मॉल लेटर है तो ये रेसेसिव कैरेक्टर है, यहाँ कैपिटल लेटर है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो व्हेन ही डन द क्रॉस, तो F1 जनरेशन में उसको मिला a seed that has a mixture of all the character। तो आप यहाँ देखोगे in F1 generation he got capital R, small r, capital Y, small y। तो यहाँ पे कैपिटल प्रेजेंट है तो that means उसी का ही कैरेक्टर हमें यहाँ दिखाई देगा। सो राउंड इज द डोमिनेंट, तो राउंड, येलो इज डोमिनेंट एंड येलो, दैट इज द F1 जनरेशन। अब उसने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन करा F1 जनरेशन को, तो इसी राउंड येलो सीड को उसने क्रॉस करवाया एंड द रिजल्ट इन द F2 जनरेशन ही गॉट 9 सीड उसको मिली जिनके कैरेक्टर थे राउंड एंड येलो, 3 सीड मिली ग्रीन एंड राउंड, 3 सीड्स मिली रिंकल्ड एंड येलो और 1 सीड मिली रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये उसको रिजल्ट मिला इन F2 जनरेशन, राइट। सो हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस, ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं? सो आई टोल्ड यू इट्स ऑल बिकॉज ऑफ DNA। So the DNA is the information source for making the protein in the cell. A section of the DNA that provide information for one protein is called a gene for that protein, right? So ये सारे कैसे एक्सप्रेस होते हैं? That is because of the cellular DNA. So एक small part of a DNA, एक छोटा सा section of a DNA provide information for one protein और हम उसको क्या बोलते हैं? Gene, right? So how do protein control the characteristics that we discuss here? आगे प्रोटीन ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कैसे करता है और ये प्रोटीन क्या है? So the information for one protein is called a gene. So your characteristics are basically controlled by a gene. जो भी आपको characteristics हैं, all because of the gene, right? So we know that the plant have hormone that can trigger growth. Plant height can thus depend on the amount of the particular plant hormone. So हमारे अंदर भी height का hormone होता है, plant में भी hormone है, जब वो trigger होता है it let the plant to grow its height. Same with the human, जब ये hormone trigger होता है हमारी height increase होती है, right? So the amount of the plant hormone made will depend upon the efficiency of the process for making it. जो ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे हो रहा है? बॉडी की एफिशिएंसी के हिसाब से प्लांट हार्मोन मेड डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी कि वो कितना बना सकता है, कैसे बना सकते हैं, उसी के एफिशिएंसी के हिसाब से हाइट होती है। नाउ कंसीडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। सो इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। अब हमारी बॉडी में जब भी कोई रिएक्शन होता है एंजाइम्स takes place a very important role, right? Enzymes का बहुत important role होता है। So the efficiency of this process basically depend upon the enzyme. अगर enzyme अच्छे से work करेगा so you will have lot of hormone for growth, for height, and the plant will be tall. If the gene of that enzyme has an alteration, अगर उस एंजाइम में कुछ ऑल्ट्रेशन हो गया, कुछ इधर उधर हो गया, सो द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम विल बी लेस एफिशिएंट, तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रह जाएगा। जैसे आप नॉर्मली चल रहे हैं, काम करते हैं, राइट, यू आर एफिशिएंट। ज़रा सा बुखार आ जाता है तो हम बहुत ही ढीले हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। सेम विद द एंजाइम, अगर एंजाइम में कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, क्योंकि अब उसकी एफिशिएंसी ही कम हो गई है तो वो उतने हार्मोन ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट। तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं हाइट के। So the gene control characters or trait. So gene basically control the character or a trait, right? ये मैंने आपको पहले ही बताया है। If the interpretation of Mendel experiment have been discussed are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during the sexual reproduction, right? यही हमने पढ़ा है
कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बोथ द पेरेंट गिव इक्वल अमाउंट ऑफ द डीएनए. वी हैव डिस्कस्ड दिस in the previous chapter. Now, if both parents can help determine the trait of the progeny, both parents must be contributing a copy of the same. अगर दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को बताने में, प्रोजेनी के कैरेक्टर को बताने में, so that means both the parent must contribute copy for the same, right? So this means that each pea plant must have two set of all the gene, right? Two set of all the gene. अगर ये है ना R, two set, right? Y, two set of all the gene. So one inherited from each parent. For this mechanism of two separate traits work, each germ cell must have only one gene set, shape and the color of the seed. So जो भी character you see in the plant, in human or in animal, it is all because of the gene, a set of gene basically, because you are getting from both the parent, mother and the father. So, do germ cell make a single set of gene from the normal copy that all the other cell in the body have? If the progeny plant inherit a single whole gene set from each parent, then the experiment 9.5 cannot work. अगर सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट होता और वो जीन देता तो वो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाता. एंड दिस इज बिकॉज two characters R and Y would be linked to each other and cannot be independently inherited. जो R और Y का कैरेक्टर है, दैट इज राउंड और येलो और द ग्रीन कैरेक्टर, वो दोनों लिंक्ड हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, राइट? So, single long thread of a DNA but as separated independent pieces are called chromosome. So, single long thread of a DNA but separate piece, तो हम इसको क्या बोलते हैं? It is a chromosome. Now, chromosome, inside a chromosome there is a DNA, inside a DNA there is a gene. Remember this. First chromosome, then DNA, then gene. Okay, ये हो गया. नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. बहुत ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ हाउ यू डिटरमाइन वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल? सो वी हैव डिस्कस द आइडिया ऑफ द टू सेक्स participating in the sexual reproduction must be somewhat different from each other, right? For number of reasons. However, sex of the newborn individual determine. So how we find out it is a male or a female? So the different species use different strategy for this. Some rely entirely on the environmental cues, and thus in some animals the temperature at which the fertilized egg are kept determine whether the animal developed in the egg will be a male or a female. So वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर इन एनिमल. कैसे? जो भी उनका एग फर्टाइल हो रहा है, फर्टिलाइज्ड एग, वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, उसका क्या टेम्परेचर है, क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि एग मेल होगा या फीमेल होगा. ओके, कि वो मेल होगा या फीमेल. नाउ इन other animals such as snail, individual can change sex, indication that sex is not genetically determined. In human being, the sex of the individual is largely genetically determined, right? हमारे में it can be determined. Now, how? Let me tell you. Now the gene inherit from our parent decide whether we will have boy or a girl. So जो भी जीन हमको पेरेंट से मिलते हैं उससे डिसाइड होता है कि न्यूबॉर्न बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा कि बॉय होगा, राइट? We have assumed that similar gene set are inherit from both the parents. Now let us find out how. So the explanation lie in the fact that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a
maternal and a paternal copy. तो maternal means mother, paternal means father. So हमारे पास दोनों ह्यूमन की क्रोमोसोम की कॉपी होती है, पैटर्नल कॉपी एंड द मैटरनल कॉपी, एंड वी हैव 22 pairs of such chromosome. In total we have 23 pairs of chromosome, राइट. जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो हमारे अंदर सेम रहेंगे मेल और फीमेल में, बट जो लास्ट वाला पेयर है ना, दैट इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज डिफरेंट, और उसी के बेसिस पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है. ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ. इन ह्यूमन वी हैव इन टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. आउट ऑफ 23, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन मेल एंड फीमेल. हमारे में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर है, बट द लास्ट क्रोमोसोम, द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट, और यही क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है सेक्स, whether it's a male or a female. Okay, so but one pair called the sex chromosome and is odd in not always being a perfect pair. ठीक है, ये हमेशा एक परफेक्ट पेयर नहीं बनाता है. वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, both have X, right? In a female have 2X chromosome and a male have 1X and 1Y chromosome. ठीक है, सो द फीमेल के पास 2X क्रोमोसोम है और मेल के पास 1X और 1Y क्रोमोसोम है. So the normal sized X chromosome while other is a short one, that is the Y chromosome. X क्रोमोसोम का तो नॉर्मल साइज है, बट Y क्रोमोसोम जो है ना थोड़ा छोटा है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं. So women are XX while male are XY. Now we can work out that the inheritance pattern of X and Y. Okay, हमें पता है कि क्रोमोसोम DNA, right? So let's say let me erase this first, थोड़ा नीट और क्लीन हो जाएगा ताकि यहाँ पे दिखाने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे, राइट. ये तो बहुत हौच पौच हो जा रहा है. Yeah, okay, let's take XX जो मेल फीमेल है, XY जो मेल है, राइट. क्या लिख दूँ, मदर एंड फादर. जब रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन ऑफ सेल और गैमीट होता है, तो लेट्स टेक यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और मदर ने अपना एक एक्स दिया, फादर ने अपना एक एक्स दिया, क्योंकि मदर के पास तो चॉइस ही नहीं है, मदर तो हमेशा एक्स ही देगी, बट फादर के पास चॉइस है. फादर या तो एक्स दे सकता है या तो वाई दे सकता है. जब मदर ने भी एक्स दिया और फादर ने भी एक्स दिया, सो द ऑफस्प्रिंग होगा दैट इज अ गर्ल, राइट. अगर मदर ने एक्स दिया और फादर ने वाई दिया, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट इज अ बॉय, राइट. सो द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बेसिकली डिपेंड ऑन फादर. मदर के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता है. मदर ऑलवेज गोइंग टू गिव एक्स. जो भी डिपेंड होता है दैट इज ऑन फादर, क्योंकि फादर या तो एक्स देगा या तो वाई देगा. उसी के बेसिस पे द न्यू बॉर्न बेबी विल बी मेल और अ फीमेल, या तो वो लड़की होगी या तो वो लड़का होगा. ठीक है, यही यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज द सेम क्रॉस हेयर. ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई मेल और एक्स एक्स फीमेल, तो फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं है. तो जब मेल फीमेल एक्स देगी और वाई भी मेल भी एक्स देगा, तो गर्ल. जब फीमेल एक्स देगी और मेल वाई देगा, तो बॉय. ओके, सो who inherit a Y chromosome from him will be a boy.
अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो न्यूबॉर्न बेबी होगा आपका बॉय. दैट इज हाउ वी डिटरमाइन सेक्स. Okay, now evolution. Evolution is very important. Now, first we need to understand what is evolution. Evolution is basically how you have changed with the environment so that you can survive to this change environment. राइट. आप अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं सो दैट जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में आप उसमें एडजस्ट कर पाएँ और उसमें रह पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ. दैट इज़ द एवोल्यूशन. और हम जो ह्यूमन है वी हैव इवॉल्व विद द टाइम, राइट. पहले हम कैसे थे, फिर धीरे धीरे हमने चलना सीखा, खाना पकाना सीखा, सब कुछ सीखा. और हमारे बॉडीज़ में भी चेंजेस होते हैं, डीएनए चेंज होता है, म्यूटेशन होता है. क्यों होता है? ताकि जो अर्थ चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम भी चेंज हो और वहाँ पे सर्वाइव कर सकें. सो दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमन, ये प्लांट में भी होता है एंड इट टेक्स प्लेस इन एनिमल एज वेल. ये हर एक में होता है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ someone is not able to change itself with the environment, then they will not able to survive and they die. Simple. So the evolution, we have noted that in an inbuilt tendency to variation during reproduction, both because of the error in the DNA copying and result of the sexual reproduction. Okay, so या तो error हो जाता है in a DNA copy और during the sexual reproduction कुछ changes हो जाते हैं. Now let's take this example. Consider a group of 12 red beetle. आप एक beetle का group ले लें, ठीक है. They live, let us assume, in some bushes with green leaves. वो रह रही है एक bushes में green leaves पे. And this population will grow by sexual reproduction. और उनमें क्या हो रहा है? Sexual reproduction के थ्रू वो ग्रो कर रहे हैं and can generate variation. क्योंकि sexual reproduction हो रहा है तो variation is also very high. Now let us imagine also that crows eat these beetle. अब एक और चीज़ हम इमेजिन कर लेते हैं कि क्रो जो है वो उन बीटल को खाती हैं क्योंकि बीटल कहाँ पर है? पेड़ पर है. क्रो भी अपना खाना ढूंढने इधर उधर जा रही है और पेड़ पर उनको खा रही है. नाउ द मोर बीटल्स द क्रो ईट, द फ्यूअर बीटल्स आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस. अगर बीटल्स को ज़्यादा खा रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑफ द बीटल इज रिड्यूसिंग, राइट. रेड बीटल की पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग और बीटल रिमूव हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन. अब हम एक डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं. अभी हमने क्या लिया? रेड कलर की बीटल हैं, ग्रीन लीव्स पर हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और क्रो उनको खा रही है और उनके खाने की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. ये एक सिनारियो है. अब हम दूसरा सिनारियो देखते हैं कि अब एक और सिचुएशन है, बीटल का पॉपुलेशन है. बट in the first, the color variation arises during the reproduction so that there is one beetle that is green in color instead of red. जब reproduction हुआ red beetles का, अब हमने देखा कि सारे तो red हैं but उनमें से एक जो है green निकल गया beetle. Okay, अब यहाँ पे देखें क्या होता है. Now this beetle moreover can pass the color on to its progeny. क्योंकि अब ये जो है ये ग्रीन कलर का है तो इसका तो डिफरेंट ही कलर है. दैट मीन्स इसके अंदर ये ग्रीन कलर का जीन है और ये जीन अब पास ऑन कर देगा नेक्स्ट जनरेशन में. सो ऑल द प्रोजेनी बीटल आर ग्रीन. सो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सारे ग्रीन होंगे क्योंकि उसने अपना ग्रीन कलर पास ऑन कर दिया. सो द क्रो कैन नॉट सी ग्रीन कलर्ड बीटल ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेस. क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया? कैमोफ्लाज हो गया. लीव्स भी ग्रीन कलर की, बीटल भी ग्रीन कलर की. सो द क्रो इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, वो देख ही नहीं पा रहे हैं. सो कैन नॉट ईट देम. जब उनको दिख ही नहीं रही है बीटल तो वो उनको खा भी नहीं पा रहे हैं. सो व्हाट हैपन? द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल इंक्रीज, राइट. उसमें इंक्रीज हो गया क्योंकि क्रो उनको खा नहीं पा रहे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लीव्स है कि बीटल है, उनको पता ही नहीं चल रहा है
तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है. So the progeny of the green beetle is not eaten while the progeny of red beetle continues to be eaten. As a result, there are more and more of green beetle as compared to the red beetle population. So वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन हो गई एज कंपेयर टू द रेड बीटल. क्या हुआ यहाँ पे? एवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ, कोई म्यूटेशन हो गया जिस वजह से एक बीटल ग्रीन निकल गया और जब उसने रिप्रोडक्शन करा उसने ग्रीन कलर पास ऑन कर दिया टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो आप ये कह सकते हैं सो द ग्रीन कलर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस. ठीक है, वो एक्सप्रेस हो गया, चेंज हुआ, जो भी आप कह दें, बट बिकॉज ऑफ दिस द ग्रीन कलर बीटल पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन. चेंज हैपन विद द टाइम. टाइम टू टाइम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी. ओके, नेक्स्ट, ये दो सिचुएशन हो गई है. नाउ इन द सेकेंड सिचुएशन अगेन अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बट now a result is that you get blue color instead of red. अब आपको blue color मिल रहा है. So this beetle can also pass the blue color to the next progeny, right? वो आपकी next generation को blue color देगा. So all the progeny beetle will be in the blue color. So the crow can see the blue color beetle in the green leaves, right? वो easily appear हो जाएगा of the bushes as well as they can see the red one also. So therefore they can eat them. जब ग्रीन कलर नहीं दिख रहा बट उनको रेड कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है इजीली, तो उनको पता चल रहा है ये हमारा खाना है, वो आराम से खा गए. नाउ व्हाट हैपन इनिशियली इन द पॉपुलेशन एज इट एक्सपेंड देयर आर फ्यू ब्लू बीटल्स. जब शुरुआत हुई तो उसमें बहुत ही कम ब्लू बीटल्स थी बट मोस्ट ऑफ द रेड बीटल्स. तब ज़्यादा रेड बीटल्स थी. सो एट दिस पॉइंट एन एलिफेंट कम्स बाय एंड स्टैम्प ऑन द bushes where the beetles live. अब इस सिचुएशन में हम एक एलिफेंट को भी ले आते. अब एलिफेंट आ गया, उसने पैर रख दिया बुशेस पे जहाँ पे बीटल रहती थी. सो दिस किल्ड मोस्ट ऑफ द बीटल. अब आप समझ सकते हैं जब एलिफेंट हाथ रखेगा तो पैर रखेगा तो क्या होगा. सो बाय चांस द फ्यू बीटल दैट हैव सर्वाइव्ड आर मोस्टली ब्लू. अब कुछ उसमें से बच गए, उनका भाग्य अच्छा था, कुछ बच गई और जो बची वो ब्लू कलर की बीटल्स थी. So the beetle population slowly expand again, but now the beetle in the population are mostly blue in color. क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की बीटल ही बची थी. तो ऑब्वियसली सो द पॉपुलेशन ऑफ द बीटल जो इंक्रीज होगी वो ब्लू कलर की ही होगी ना, क्योंकि वही कलर की तो पॉपुलेशन बची है. So this is obvious that in both situations, what started out as a rare variation came to be a common character in the population. So in other words, you can say that the frequency of an inherent trait change over a generation, right? Frequency of inherent trait, जो आपकी जो बार बार हो रहा था, जो ट्रेट, जो कैरेक्टर, वो चेंज हो गया जनरेशन टू जनरेशन. सिंस जीन control the trait, and we can say that the frequency of certain gene in a population change over a generation. So हम इससे कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर चेंज होते हैं जनरेशन टू जनरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन. बट देयर आर intersecting difference too in the two situation, and in the first case the variation become common because it give us survival advantage, and in another word you can say that it is naturally selected. Okay, so हम क्या बोलते हैं? Natural selection. What is natural selection? Where nature have selected, it is not done by the human. ओके, नेचर कैसे? वहाँ पे रेड बीटल क्रो को दिख रहे थे तो वो खा रहे थे, ग्रीन बीटल नहीं दिखे तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. तो एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन हो गया. सो वी कैन से दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by the crow, and the more crow there are, the more red beetles would be eaten, and more the population of the green beetle in the population increase. So the natural selection is directing evolution in the beetle population and result in the adaptation of the beetle population to fit to their environment. So इसको हम और क्या बोलते हैं? Survival of the fittest. The one who is fit will survive.
The one who is not fit will not survive. In the second situation, the color change gave no survival advantage. Right? रेड था, ब्लू था, कोई एडवांटेज ही नहीं था बीटल के पास सरवाइव करने का, दोनों ही कलर दिख रहे थे. सो इंस्टेड ऑफ दिस इट वॉज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ द बीटल. अचानक से वहाँ पर क्या आ गया, हाथी आ गया, तो वो एक्सीडेंटली उनका थोड़े बीटल बच गए ब्लू कलर के. सो वन कलर that changed the common character of the resultant population. So the elephant would not have caused such major havoc in the beetle population if the beetle population have been very large. ठीक है, वो तो एक एक्सीडेंट था कि हाथी आ गया, पैर रख दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, और जिस वजह से कुछ बीटल्स बच गए और उन्होंने अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को सेम कलर दे दिया. राइट? इवन इफ दे हैव नो सर्वाइवल एडवांटेज. कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं थी ना, कलर आराम से देख पा रहे थे, तो वो एडवांटेज नहीं थी, बट ये एक्सीडेंटली उनको एडवांटेज मिल गई. नाउ कंसिडर अ थर्ड सिचुएशन. इन दिस द बीटल पॉपुलेशन बिगेन टू एक्सपेंड, द बुशेस स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम प्लांट डिजीज. बीटल की एक्सपेंड हो रही है पॉपुलेशन, कोई उनको खा नहीं पा रहा, बट अचानक से प्लांट में कोई डिजीज लग गई है. सो द अमाउंट ऑफ द लीव मटेरियल फॉर द बीटल इज रिड्यूस. तो बीटल का खाना खत्म हो गया, राइट? क्योंकि प्लांट में तो डिजीज लग गया. बीटल आर पुअरली नरिश्ड. एज अ रिजल्ट द वेट ऑफ द एडल्ट बीटल डिक्रीज. सो when plant were plentiful, but now there is no genetic change in occurring. अब जब प्लांट में ही डिजीज लग गई है, प्लांट में कोई लीफ नहीं बची है, बीटल के पास खाना नहीं बचा है, तो उनका वेट लॉस हो रहा है, बट वहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है बीटल में. वो जेनेटिक चेंज नहीं हुआ, वो पतले क्यों हो गए, वेट क्यों उनका क्यों लॉस हो गया? क्योंकि उनके पास खाना नहीं था. राइट? आफ्टर अ फ्यू ईयर, a few beetle generation such as sarcasity, the plant disease is eliminated. अब कुछ समय के बाद, कुछ ईयर के बाद, few beetle generation of such sarcasity, the plant disease is eliminated and there is a lot of food. अब जब प्लांट डिजीज उसमें से चली गई, अगेन लीव्स आने लगी और फिर से उनके पास खाना आ गया. तो अब हम क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अब उनके पास खाना आ गया तो उनका वेट भी बढ़ेगा. राइट? दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेचुरल. ये नेचुरली कॉज हो गए. एलिफेंट ने हाथ रख दिया, कोई डिजीज आ गई, कौवा खा रहा है, ये सारे नेचुरल प्रोसेस है. देन एक्वायर्ड एंड इनहेरिट ट्रेड. सो we have discussed the idea that the germ cells of sexual reproduction population are made in a specially reproductive tissue. If the weight of the beetle is reduced because of the starvation, then there is no change in the DNA of the germ cell, right? उनका तो starvation हुआ है ना, कोई changes थोड़ी ना आए हैं DNA में. So the low weight is not a trait that can be inherited by the progeny. वो एक ट्रेट थोड़ी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देंगे, वो तो उनको खाना नहीं मिला. सो इवन इफ सम जनरेशन ऑफ बीटल आर लो इन वेट बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन. वो एवोल्यूशन के एग्जाम्पल नहीं है, वो एग्जाम्पल है खाना ना मिलने की वजह से. सो द चेंज इज नॉट इनहेरिट ओवर द जनरेशन. इसीलिए जो वो चेंज था वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हुआ. And that is non-reproductive tissue cannot be passed on to the DNA of the germ cell, and therefore the experience of the individual gene, its lifetime, cannot be passed on this progeny and cannot be cause the evolution, direction of evolution. Right? तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, अगर आप बहुत सारा खाना खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे. तो ये तो आपके ऊपर है, आपने कितना खाना खाया कितना नहीं खाया. अगर आप नहीं खाना खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, मगर ये जो आप पतलापन है वो अपने बच्चे को थोड़ी ना पास ऑन कर देंगे, वो आपके जीन में थोड़ी ना चला गया है, ये तो आपने खाना नहीं खाया है, तो वो कैरेक्टर यू कैन नॉट पास ऑन. सो अनदर एग्जाम्पल हाउ एन इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन इट्स प्रोजेनी, द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स लाइफ टाइम. जो भी आप लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आप नेक्स्ट जनरेशन को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू योर DNA. राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ द फिजिकल थिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग.
if we breed a group of mice, all their progeny will have tail, right? As expected. Now, if the tail were of their mice are removed by the surgery, in each generation, do these traits क्या वो ट्रेड खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो है, वो तो आपने फिजिकली उसकी टेल निकाल दी है, राइट? सो इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द डीएनए ऑफ द जर्म सेल ऑफ माइस। वो डीएनए उनके अंदर है, आपने उसके जर्म सेल को नहीं चेंज कर दिया है। इन द नेक्स्ट जनरेशन अगर आप उस माइस का टेल निकाल देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जो होगा उसके पास माइस होगी ही होगी, क्योंकि वो जीन है उनका। सो this is the reason why the idea of heredity and the genetics have been discussed earlier are so essential for the understanding the evolution. And Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species by natural selection. So evolution by natural selection is very important and it is given by Charles Darwin. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। Speciation we will do in the next class. Till then, please do revise and like my channel, subscribe and share with your friend. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डू आस्क मी, आई विल रिप्लाई। मैं उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, बट you also have to revise. Okay, bye.